এই মুহূর্তের যে বিশেষ খবর সেটা হচ্ছে কিন্তু সামনে যে লোকসভা নির্বাচন, আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে কিন্তু কংগ্রেস দলের যে ইশতেহার কিন্তু প্রকাশ করলো। আর একটু আগেই কিন্তু ইশতেহার প্রকাশ করলো সর্বভারতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী কিন্তু বলেন যে এই ইশতেহার তৈরি করতে কিন্তু 1 বছর আগে থেকে কিন্তু তারা তাদের কাজ কিন্তু শুরু করে দিয়েছে, এবং তিনি দাবি করেন যে এই ইশতেহার করার পেছনে যাদের সহযোগিতার হাত রয়েছে তারা হলেন মনমোহন সিং এবং সোনিয়া গান্ধী এবং একে অ্যান্টনি, তাদের কিন্তু হাত রয়েছে এই ইশতেহার তৈরিতে। এই ইশতেহারের যে প্রথম থিম রয়েছে সেটা হচ্ছে নেই কিন্তু রাহুল গান্ধী বলেন এই নেয়ের উপর ভিত্তি করে কিন্তু এই ইশতেহারের যে গুরুত্ব সেটা কিন্তু দেওয়া হয়েছে, এবং দ্বিতীয় যে থিমটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বেকারত্ব। রাহুল গান্ধী দাবি করেন যে দেশে 22 লক্ষ সরকারি চাকরি পদ খালি রয়েছে, এই শূন্য পদ পূরণ করার প্রতিশ্রুতি কিন্তু দিয়েছে রাহুল গান্ধী। যদি ক্ষমতা আসে তাহলে কিন্তু এই যে শূন্যপদগুলি রয়েছে 22 লক্ষ সরকারি চাকরির শূন্যপদ, এই শূন্যপদগুলি কিন্তু পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রাহুল গান্ধী। ইশতেহারের যে তৃতীয় থিম সেটাও রয়েছে নতুন শিল্প গড়লে প্রথমে 3 বছর কোনো অনুমতি লাগবে না। যে নতুন শিল্পের উপর যে থিম সেটা ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে রাহুল গান্ধী বললেন যে নতুন শিল্প গড়লে প্রথম 3 বছর কিন্তু কোনো অনুমতি লাগবে না। চতুর্থ যেই থিম রয়েছে কংগ্রেসের সেটা হচ্ছে কৃষি ঋণ মুকুব। এটা কিন্তু বলেছেন রাহুল গান্ধী। তার পরিপ্রেক্ষিতে ইশতেহারে বলা হয়েছে যে রেলের যে বাজেটের মতো কৃষকদেরও আলাদা বাজেট করা হবে। ইশতেহারে কিন্তু রাহুল গান্ধী বলেছেন যে রেলের যে বাজেট, এই বাজেটের মতো কিন্তু কৃষকদের জন্য আলাদা বাজেট করা হবে। এবং সব থেকে যে বড় প্রতিশ্রুতিটা ছিল সেটা হচ্ছে যে দেশের সব থেকে যে গরিব 20% মানুষ রয়েছে তাদের কিন্তু বছরে 72,000 টাকা করে দেওয়ার কিন্তু প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন রাহুল গান্ধী। এবং তিনি কৃষকদের জন্য যে আরেকটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটা হচ্ছে তিনি আরও বলেন যে কৃষকরা ঋণ পরিশোধ করতে না পারলেও কৃষকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা যাবে না। তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কৃষকদের সেটা হচ্ছে কৃষকরা ঋণ পরিশোধ করতে না পারলেও কৃষকদের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা করা যাবে না। काफी अच्छी तरीके से हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने काम किया है, तो मैं चिदंबरम जी का, देव गौड़ा जी का और हमारी बाकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। मनमोहन सिंह जी ने अपनी एक्सपर्टीज दी, मैनिफेस्टो को एसेस किया, वेट किया। एंटनी जी ने अपना एक्सपीरियंस दिया, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और सोनिया जी ने भी अपने विचार मैनिफेस्टो पे हमें दिए, तो सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हार्ट का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे, और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है। और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल। गरीबी पर वार 72,000। और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। 1 साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे 2 काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, पहली बार। और दूसरा काम,
जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। तो ये हमारा पहला कदम, न्याय का कदम। दूसरा, चिदंबरम जी ने कहा सबसे बड़े दो मुद्दे हैं, रोजगार और किसान। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की, झूठ। मैंने इस मामले में भी मैनिफेस्टो कमेटी से कहा, मुझे आप सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है। 2 करोड़ नहीं किए जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है। मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं और सच्चाई बड़ी क्लियर है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। एंटरप्रेन्योर्स के लिए, आज अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया की दुनिया में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप जाइए, एकदम बिजनेस खोलिए, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं करिए, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाइए। आप हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे। 3 साल के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री ने मनरेगा के बारे में बोला, बोगस स्कीम है, बेकार स्कीम है, मजाक उड़ाया। आज पूरा देश जानता है कि मनरेगा ने हिंदुस्तान की कितनी मदद की थी। तो हम मनरेगा के 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। 100 से अब हम 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। किसान की बात आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। 10 दिन के अंदर कहा था, हम 10 दिन में कर देंगे, 2 दिन के अंदर कर दिया। तो हमारी आप इंटेंशन अच्छी तरह समझ सकते हो। तो किसानों के लिए हमने 2 चीजें, बड़ी चीजें सोची हैं। एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था, किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तो यह हमारा पहला स्टेप। और दूसरा ऐतिहासिक स्टेप, हिस्टोरिकल स्टेप। देखिए, करोड़पति बैंक लोन लेते हैं। आपने देखा, अनिल अंबानी जैसे लोग, मेहुल चोकसी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग चोरी करके बैंक का पैसा लेकर भाग जाते हैं। मगर जो हमारे किसान हैं, ईमानदार लोग, वो जब बैंक लोन लेते हैं, अगर वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। हमने निर्णय लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ऑफेंस ना माने। अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस हो। तो यह भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। शिक्षा और स्वास्थ्य हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा में हमने निर्णय लिया है कि जीडीपी का 6% पैसा, 6% पैसा हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाए। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम, हमारे जो बेहतर, सबसे टॉप क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको सब जगह, सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। तो एजुकेशन के लिए हमारा 6% बजट का टारगेट है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको रिड्यूस किया है।
यूपीए के समय से रिड्यूस किया है। हेल्थ केयर में सरकार एक स्कीम लाई है। बेसिकली स्कीम का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता से पैसा लेकर 10-15 उद्योगपतियों को इंश्योरेंस के माध्यम से उनके जेब में पैसा डालना। तो हम प्राइवेट इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर पर भरोसा नहीं करते हैं। हम सरकारी अस्पतालों को, सरकारी पब्लिक हेल्थ को मजबूत करने का काम करेंगे और हमारा फोकस होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को हाई क्वालिटी अस्पताल की एक्सेस हो, हाई क्वालिटी इलाज की एक्सेस हो। तो ये हमारे 5 फोकस एरियाज होंगे। नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी की आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का आपको रिकॉर्ड मालूम है। पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार ने देश को बांटने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है और उनका रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में उनका रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। आतंकवाद के जो कैजुअलिटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने का काम करेगी, देश को एक साथ लाने का काम करेगी और जो हमारा नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी है उस पे हमारा जबरदस्त फोकस होगा। आप सबका बहुत